18 में मेरा प्री नहीं हुआ, 19 में पहली बार मेरा प्री हुआ, तो मैं यहाँ पे आया, टेस्ट सीरीज़ मैंने लिखी पहली बार यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या था भाई? नूपुर गोयल मैम की कॉपी बार बार देखता था, मतलब 2000 गोल्ड स्टैंडर्ड्स आई विल से। मतलब विश्वास रखिए, मतलब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हो, जैसे मुझे बहुत मज़ा आता था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के, मतलब तो जैसे 1-2 बार मेरे भी मतलब दिमाग में आया था कि ऑप्शनल चेंज कर लिया जाए बीच में, लेकिन वो मज़ा नहीं आता दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने में मेरे को। मतलब Thank you so much everyone for staying back today. I mean, like to interact with the topper. I just got to know from Ansari sir that you had a farewell day today and you have done a lot of work today. I mean, like, you know, to have this moment. So on this occasion, like, we are honored to have one of our topper from public administration. It seems he has got the highest mark in public administration this year. And he has been associated with Lukman IAS for a long time now, since 2019 itself. So he has been associated with public administration. He has written multiple test series also in public administration. Basically, like in his case, he was not preparing full time. He is already a working candidate. So he is working as, let's say, like inspector, income tax inspector. He joined it through like SSC paper. So it's been 7 years that he has been working, and along with this he has been preparing. So when a working candidate prepares for the examination, they face a lot of challenges. Number one, wherever you are working, you have to devote your time there. And then it does demand your time, it does demand your effort. Then the amount of energy that you are left with for the preparation remains very low. But during this phase also, he has been consistently putting effort. Slowly and gradually, every year he has been improving on his, let's say, various aspects of the preparation. And last year he has appeared in interview guidance program also with us. But however, that year he could not get through the exam. This year, let's say, like, he has got a very good rank, 625, and he has public administration optional subject. He has been associated with ethics test series and essay test series also. And while interacting with him, I got to know that, like, he used to get his copies especially evaluated through Ansari sir. How he used to write the test paper over here, he used to interact with Kamlesh outside, and he used to tell कि हाँ मेरी copy Ansari sir से check करवा देना. So that way, today I had the opportunity of interacting with him. So during the interaction, he also told that the model answers that they get as part of public admin test series, model answers themselves become a source of preparation. I mean, like, these are compiled notes from different areas, and he has gone through the previous year model answers. So that have played a very important role in his preparation. So I would like Ansari sir to share, let's say, his thought on this. Do not see the rank results, see the highest marks. That and this legacy we continue, and he continues the legacy. Yes. Thank you, sir. So someone was referring Lukmanians. So this is how Lukmanians' legacy in public administration, and that he continues, and I think the torch he will pass on to you. Yes, sir. To continue the legacy, and it's really good to have, means you have interaction with a person who has just secured highest, and he would get probably also IAS this year. Hope that, and give a clap for getting IAS. And also from Jaipur, Rajasthan. So he will share his experience and talk you about how it takes to let's say coming this level and securing highest, how repeatedly trying in optional and improving. Yes, sir. Yes.
हिंदी में बात करूँ? हाँ, यस। हाँ, तो मतलब मैंने 2017 में अपनी तैयारी चालू करी थी। 73 मार्क्स आए थे मेरे पहले टेस्ट में। फिर ग्रेजुअली वो इम्प्रूव होते गए, मतलब तो जैसे पहले मेंस में मेरे 223 नंबर आए थे टोटल। फिर 2020 में लिखा तो कम हो गए नंबर, 220 हो गए पबैड में। फिर 21 में लिखा मैंने तो 238 नंबर आए मेरे टोटल, और 22 में 246, उसके बाद इस साल 286 नंबर। 21, 22, 23 में मैंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ लिखी थी। तो ग्रेजुअली मतलब जो मेरा बेसिक कंटेंट था क्लासरूम का, और जो टेस्ट सीरीज़ में मॉडल आंसर्स प्रोवाइड किए थे मुझे, उनको मैंने सोर्स बनाया और उनके बेस पे मैंने आंसर लिखे मतलब। और So this is how it goes now, like continuously writing test is also Yes. continuously trusting, let's say that, यस, because we have also challenge is that कि he says कि एक साल कम हो गया marks, so we are also having challenge कि suppose when we guide the students and they also apply efforts, but at times it happens कि जिस साल वो best efforts लगाते हैं वो marks ही कम हो जाता है। तो we also feel very, let's say that कि uncomfortable and means feel कि ऐसा कैसे हो गया। But then it is the continuous trust, you can say that, if he has continued and appeared regularly writing tests, so it shows also that the trust level he may have that कि one day he will improve. यस। तो मतलब ट्रस्ट यही था कि जैसे मैं बार बार यहाँ पे टेस्ट सीरीज लिखने आ रहा था, और जो जो मुझे कमेंट्स दिए जा रहे थे टेस्ट में, मैं पहली बार सर से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मतलब मैंने आज तक सर से इंटरेक्ट नहीं किया है। तो जो भी कमेंट्स आते थे मैं उन पर डेडिकेटेडली वर्क करता था और इम्प्रूव करने की कोशिश करता था। तो वही मेरे लिए वर्क किया, मतलब कि जो जो करना है इम्प्रूवमेंट उस हिसाब से। Yes. So you can ask if you have Yes. questions. सर मेरे पास दो क्वेश्चन है। जैसे आपने बोला कि नोट्स उसके बाद मॉडल आंसर आपके प्राइमरी सोर्स होते थे, हाँ। तो मैं भी पुराने प्रीवियस ईयर के जो मॉडल आंसर टेस्ट के हम लोग को प्रोवाइड किया गया है वो मैं भी पढ़ता हूँ। तो सर कई बार ऐसा होता है कि पूरा एक क्वेश्चन ही नया होता है, उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, तो उस इन्फॉर्मेशन को पूरा इंकॉर्पोरेट करना रहता है नोट्स में। फिर सेकंड बार जब रिवाइज करते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया, तो सिर्फ जितना जो वैल्यू एडिशन मटेरियल है वो छोड़ देते हैं। तो कितना हमको ऐड करना चाहिए मॉडल आंसर से अपने नोट्स में? एंड दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि अभी जैसे मैं अंसारी सर से भी डिस्कस कर रहा था, तो जैसे आप बिगनिंग में लिखते होंगे तो बहुत बड़े आंसर या फिर ऐसे टाइप से आंसर जो बड़े बड़े पैराग्राफ, बट मैं आपके आंसर से देख रहा था सर, तो आपने इतने छोटे छोटे इतने अच्छे अच्छे पॉइंट में लिखा है और लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल से लिखा है। तो उस प्रोसेस को आपने कैसे ट्रांसलेट किया है, मतलब कि कैसे ट्रांजिशन किया है कि वो बड़े आंसर से छोटे आंसर में? पहला क्वेश्चन क्या था भाई? तगड़ा हो गया। सब पहला क्वेश्चन ये था कि मॉडल आंसर आपका जो हाँ, ओके। तो मॉडल आंसर से मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे खुद के, और मतलब जो इन्फॉर्मेशन बार बार रिपीट हो रही थी, जैसे 2019 की टेस्ट सीरीज़ है, वो 21 में भी उसी टॉपिक पे साइमन पे क्वेश्चन आएगा तो रिपीट होगी ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी वो ही मैंने पढ़ी, मतलब या फिर नया एग्जाम्पल है, कुछ नया फैक्ट है, तो वो मैंने लिया और अपने छोटे छोटे नोट्स बना लिए थे इस बार। कि मतलब एक टेस्ट 60 पन्ने का होता है करीब करीब टेस्ट सीरीज़ का या रिटर्न में, तो मैं उसको 5-6 पन्ने में लिख लेता था इस बार, और वही मैं आखिरी में रिवाइज़ करता था विद नोट्स ऑफ द क्लासरूम। तो इस तरह से वो छोटा हो जाता है कि जो जो चीज़ें आपको रिलेवेंट लग रही हैं कि ये नया एग्जाम्पल है। जैसे इस बार म्यूनसिपैलिटी पे क्वेश्चन आया था, तो उसमें एक मॉडल एग्जाम्पल था कि म्यूनसिपल कमिश्नर जो सिस्टम है कोलकाता में वो आइडियल है, तो वो मैं कोट करके आया था इस बार की टेस्ट सीरीज़ के बेस पे, इस तरह से। सेकेंड क्वेश्चन ये था सर कि स्टार्टिंग में जब हम क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, तो बहुत बड़े बड़े आंसर होते हैं, और जब अभी मैं आपके टेस्ट सीरीज के आंसर्स देख रहा था तो बहुत छोटे आंसर और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव मीन्स एग्जांपल, हर पॉइंट में एक एग्जांपल था आपका। तो वो प्रोसेस को आपने कैसे तय किया है? एक तो मतलब शॉर्ट नोट्स होने चाहिए सबसे पहले आपके, और जो रिपीटेड रिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिससे कि वो एग्जांपल इंस्टेंट याद आ जाए उस टाइम फ्रेम में। और एक टॉपर्स कॉपी देखनी चाहिए प्रीवियस ईयर्स की जो आप देख रहे हो अभी। जैसे मैं स्पेशली नूपुर गोयल मैम की कॉपी बार बार देखता था, मतलब 2000 गोल्ड स्टैंडर्ड्स आई विल से, मतलब तो उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला मतलब। थैंक यू सर। Yes, any other questions? Sir, I think we discussed with Ansari sir also about this, that every year PubAd scores a little less, like 2-3 years से ऐसे पैटर्न चल रहा है।
So, how do you keep yourself motivated with the optional? Like, we already had a talk with sir, but how was your journey in this? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से कि मतलब इतना बुरा भी नहीं है परफॉर्मेंस, कुछ कुछ आ रहे हैं तो आप उनको खोजिए। और दूसरा ये है कि अपने विश्वास रखिए, मतलब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हो, जैसे मुझे बहुत मज़ा आता था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के, मतलब तो जैसे एक दो बार मेरे भी मतलब दिमाग में आया था कि ऑप्शनल चेंज कर लिया जाए बीच में, लेकिन वो मज़ा नहीं आता दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने में मेरे को, मतलब तो वो बिलीफ होना चाहिए आपके ऑप्शनल पे आपका, मतलब कि स्कोर आएगा कि हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करके आएंगे पेपर में, तो मार्क्स आते हैं। सर एक्चुअली आई वांट टू आस्क, प्रोडक्टिविटी कैसे लाएं पढ़ाई में? जैसे हम लोग आर्ट्स डेडिकेट करते हैं लगभग, बट उतना आउटपुट नहीं मिलता है, कभी ऐसा लगता है पढ़ते हैं ज़्यादा बट नहीं मिलता कभी। सर ये टाइम मैनेजमेंट। तो एक तो मतलब आप एक जगह पे लंबे टाइम तक बैठने की कोशिश कीजिए, मतलब मोबाइल दूर रखिए, मतलब पढ़ते टाइम मोबाइल पास नहीं होना चाहिए। जैसे मैं जनरली मेंस के टाइम पे मेरा फ़ोन लॉकर में रख देता था लाइब्रेरी के, तो शाम को देखता था जनरली फ़ोन में कई बार, मतलब कि 7-8 घंटे पढ़ा उसके बाद देखता था, तो वही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है जो मुझे लगता है। Yes, it is very relevant and valid point. Yes. And he is not only, there are so many candidates we have found. तो वो जैसे मैं भी फ़ोन नहीं लेके रखता हूँ, आपको पता ही है, पूरे दिन मेरे पास फ़ोन नहीं रहता है, तो दैट्स वाई आई एम एबल टू फोकस ऑन दैट। तो ये एक मेजर फैक्टर है। और लाइक द वे ही सेज ही वाज वर्किंग ना, तो वर्किंग के साथ कैसे मैनेज करना टाइम, तो आप समझ सकते हैं, वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होना। और मैं विनोद का भी स्टोरी जानता हूँ, उसके पास बेसिक फ़ोन होता था। यस सर। बिना एसएमएस वाला। हेलो सर। हेलो। एक्चुअली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन ये जीएस से, तो फिर ये पूछना था कि अभी प्रीलिम्स का करते हैं और मेंस का भी होता है, मतलब साथ में करना होता है। हाँ। तो फिर ये कैसे समझे कि मतलब कभी नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स वगैरह जो भी, तो फिर प्रीलिम्स के लिए कैसे बनाना है, अलग बनाना है या फिर मेंस के लिए अलग बनाना है, या फिर दोनों एक साथ मर्ज करके बनाना है, एक बाद में काम आ जाए, तो वो कैसे आप मैनेज करते हैं और फिर कैसे किया जा सकता है? प्रीलिम्स के तो कुछ बेसिक सोर्सेज है जो हम सबको पता है, मतलब ये पर्टिकुलर सोर्सेज हैं और वो मेंस में भी काम आते हैं एक्चुअली में। तो जब प्रीलिम्स आता है, जैसे जनरली मैं 2 महीना पढ़ता था प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली, तो उसमें से जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती थी वो मैं बहुत, जो चीज़ें मेरे को याद नहीं रहती थी वो मैं लिख लेता था नोट्स में, जैसे एक पन्ने का नोट्स एक चैप्टर का हो जाता था, तो ग्रेजुअली चीज़ें याद रहने लग गई, तो फिर वो नोट्स कम होने लग गए, धीरे धीरे डिलीट हो जाती हैं चीज़ें। तो यही है प्रीलिम्स का फोकस। और मेंस का मतलब उसके अलावा पूरे साल मेंस पढ़ो और नोट्स बनाओ, मतलब ये है। तो आप दोनों चीज़ें मतलब एक नोट्स में, हाँ, दोनों चीज़ें आप एक नोट्स में ही बनाते हैं, लाइक मेंस प्रीलिम्स एक ही नोट्स? प्रीलिम्स के मैंने कुछ अलग नोट्स बना रखे थे, मतलब पॉलिटी को छोड़ के, जैसे इकॉनमी के नोट्स बना रखे थे मैंने, 35-40 पेजेस के नोट्स हैं मेरे, ऐसे ही इन्वायरमेंट के 30 पेज के नोट्स हैं, जो मेरा बेस मटेरियल है उसमें से जो मेरे को चीज़ें याद नहीं रहती वो वाली चीज़ें। थैंक यू सर। और सर मुझे आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी जाननी थी। फॉर एग्जांपल हमने अभी पेपर 2 पढ़ा, अभी हाँ। पेपर 1 का कुछ ज़्यादा याद नहीं है, हाँ, तो आप एक साथ मतलब रिवाइज कैसे करते थे कि आपकी इतना याद रह जाए आखिर तक? एक तो मतलब आपको मल्टीपल रीडिंग्स करनी पड़ेंगी, बार बार पढ़ना पड़ेगा चीज़ों को। जैसे अभी आपका क्लासरूम कोर्स ख़त्म हुआ है तो उन नोट्स को बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो बेटर इंटरलिंकेज होगा कि एक चीज़ आप पढ़ रहे हो तो दूसरी चीज़ याद आ जाएगी पहले वाली, उससे इंटरलिंक हो जाएगा। और दूसरा ये है कि आप आपके नोट्स बनाओ उसमें से, तो उससे क्या रिवीजन तेज होता है, तो बेटर इंटरलिंक होती हैं चीज़ें। सर तो हमारे पास जो हैंड रिटन नोट्स हैं हाँ। उनके भी नोट्स बनाए? हाँ, मैंने तो बनाए थे क्लासरूम के, क्योंकि मेरे को तो इतने अटैम्प्ट हो गए तो भाई बनाने ही पड़े। ओके सर। How you see, let's say, when public administration, मतलब how you will tell to motivate them, because what has kept you, means क्या वो चीज़ है जो आपको मोटिवेट करता रहा अंदर से, एंड आप ट्राई करते रहे एक के बाद एक, इवन कम भी आ गए एक बार फिर भी ट्राई करते रहे, तो ऐसा क्या होता है आदमी के अंदर जो वो कोर्स वो ये करता है कि उसको मोटिवेट करता है? सर सबसे पहले तो एक मेरा इंटरेस्ट था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो मोटिवेट करता रहा कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है एक्चुअली ग्रास रूट लेवल पे, तो वो क्यूरियोसिटी हमेशा थी मेरी। और सर दूसरी ये है कि मेरे इम्प्लीमेंटेशन में पेपर में कहीं ना कहीं कमी रही थी पिछले मेंस में, तो मेरे को लगता था कि अगर मैं बेटर एग्जीक्यूट करूँगा पेपर तो मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे सर।
तो दिस वाज द मेजर फैक्टर फॉर द मोटिवेशन. Yes, it is also very interesting to know कि he has given multiple times, but we have not interacted. So, but although since I have evaluated copies, so I am familiar with the name and the copies. So, how the remarks? Because many a time remarks are very blunt, very Yes, sir. So, any negative remark you remember? Blunt remark. Yes, sir. Initially it affected. लाइक मतलब बुरा लगता है पहली दूसरी बार, फिर आदत लग जाती है कि ठीक है इम्प्रूव करना है कि मतलब अब अच्छा कमेंट आ गया तो वो अच्छा है कि मतलब जैसे इस बार की टेस्ट सीरीज में मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते थे कि जैसे परफेक्ट आंसर सारी लिखते थे, बेस्ट आंसर, दिस सेशन वी अवार्डेड मैक्सिमम इन 1 क्वेश्चन, तो वो भी आया है बाद में, तो ग्रेजुअली इम्प्रूव हुआ है सर. इट वाज द मोटिवेटिंग फैक्टर. यस, ये ऐसा होता है कि when we evaluate, when I evaluate, so when any question has been answered and that answer I have given highest, I write in that copy also कि this is highest by any candidate. We write for motivation. Yes, sir. Because we know that we are very critical in evaluation. So many a time we think that कि वो only negative we are writing. So what positive we are writing? So we try to also find out there is a positive and negative. This, and if I get anything positive, so we appreciate it, we write it. So that is how the negative. Let's say that yes, 73 to 286 around, you know that. Yes, sir. So it's another Abhilash story time. Yes. Sir, good evening, sir. Yes, good evening. Sir, as long you made a journey of 4 years, sir, every time you updated your short notes, sir, or else continued with the first time notes only, sir? Like without, I tried to update the notes with the model answer provided here only, sir. The model answers which were provided by the Lukman Institute, I update with them for the current developments and the recent examples. Yes, this is how people do that. As I told you that when the journey starts becoming a bit long, the model answers become the main source. And since we know that candidates are also old, let's say that old, so we have a challenge to also give something new to them. Yes, sir. Right. So we have to by default update it by force update it, and give some, because for them what will be the motivation? Yes, If sir. question is same, answers are same, model answer, so there is no motivation. They will not join also. This, that is how it also keeps us motivated. It keeps us, let's say that, dynamic. And we do add new things, and they keep adding. This is what Yes, I am sir. saying. They keep adding in. We know also. We are also aware they keep adding, and that when they keep adding in their notes rather than preparing a fresh note. So that is how it is. Let's say over a period of time, now you have updated also, and you are better prepared also. Yes, like sir. say he is giving an example. Let's say, so we search and try to give examples. Yes. सर एक और क्वेश्चन था सर. Thank you, sir. Yes. सर जैसे कि ऐसे बोलते हैं कि पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एंड पेपर 2 जीएस पेपर 2, तो सर दोनों में कोई डिस्टिंक्शन होगा तभी 2 पेपर है सर. लाइक अंसारी सर बोलते हैं कि जो पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जीएस टाइप नहीं बनना चाहिए और जीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टाइप नहीं बनना चाहिए. तो आपने कैसे इन दोनों को सेग्रीगेट किया था, मीन्स कैसे ये दोनों के लिए अप्रोच रखा था? और ये भी बोला जाता है कि दोनों को साथ में पढ़ोगे तो एफर्ट्स मिनिमाइज होंगे. मतलब जो थिंकर्स हैं, जैसे जहाँ जहाँ थिंकर नेचुरली अगर पेपर 2 में आ रहा है तो वो कोड कर सकते हैं हम पबेड पेपर 2 में, वही जीएस 2 में नहीं कर सकते. दिस इज़ द मेजर डिफरेंस. और काफ़ी ओवरलैपिंग भी है तो जीएस 2 में हेल्प करता है, मतलब बहुत ज़्यादा. तो जैसे मैं जीएस 2 में सिर्फ आईआर के अलावा कुछ पढ़ता नहीं था, मतलब आईआर और सोशल जस्टिस थोड़ा बहुत ये है, तो वो वैसा का वैसे जाके ही मैं राइट कर देता था. मतलब ये है पेपर 2 में वही.
And ethics? एथिक्स के लिए मैंने मतलब शुरू के 2-3 साल तो मैंने एक किताब पढ़ी थी, तो उससे मेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे। उसके बाद मैंने फिर एक सीनियर है, उन्होंने सजेस्ट किया कि लुकमान सर के हैंड रिटन नोट्स खरीदो मार्केट से और वो पढ़ो। तो फिर 21 में मैंने पढ़ा तो 88 आया स्कोर, ठीक ठीक था उस साल। फिर पिछले साल 107 आया, इस साल 116 आया, तो वही नोट्स मैंने मेनली फॉलो किया। एक के साथ एक फ्री। Yes, so any other things? Any other thing you will try to share with them, tell to them? मतलब प्रोसेस में बिलीव रखिए, और अब एक बार ऑप्शनल ले लिया है तो उसमें ट्रस्ट रखिए जब तक ये ऑप्शनल है। मतलब मन में डाउट नहीं आना चाहिए, मतलब कि इस ऑप्शनल से नहीं हो रहा है लोगों का, मतलब होगा। और जैसे आप बोलते हो कम बच्चे दिख रहे हैं, तो कम बच्चे अगर दे रहे हैं उस ऑप्शनल से तो कम बच्चों के अच्छे नंबर आएंगे प्रोपोर्शनेटली। अगर 600-700 बच्चे ही मेंस लिख रहे हैं तो उस हिसाब से ही नंबर आएंगे लोगों के, और एक ऑप्शनल से 3000 लिख रहे हैं तो ज़्यादा बच्चों की अच्छी रैंक आएगी। तो ऑब्वियस बात है ये तो, मतलब Yes, that is right. ठीक है फिर? थैंक यू। Finish? यस सर, Okay, all the best. थैंक यू सर, थैंक यू सर, Thank you, sir. And all the best also. थैंक यू again. सर, थैंक यू सर, Good journey. यस सर। And senior for you? Yes, sir.